सेकेंड ईयर की अभी बुक्स भी नहीं आई और ये ऐसे आपको मिल गया। यू आर वेरी लकी। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आप ऐसे किस तरह से याद करते हैं। सो लुक एट दिस। आप लोग ये सारा ऐसे विदाउट कोटेशंस रट्टे लगा कर याद करते हैं ना। आई एम 100% श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आप रट्टे लगाना बंद कर देंगे। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे लिखने की बहुत इजी ट्रिक बताने लगी हूँ। तो आपने ऐसे का स्टार्ट कैसे लेना है, आपने करना क्या है कि जो ऐसे का टॉपिक होगा ना, उसका इंट्रोडक्शन आपने उसके फर्स्ट पैराग्राफ में दे देना। अब देखें, इस ऐसे का टॉपिक इंटरनेट है ना, तो आपने इंटरनेट के रिलेटेड इसमें कुछ बातें कर देनी है। ये वीडियो सारी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोगों ने एक सेकंड के लिए भी इसको स्किप नहीं करना। तो ये ऐसे बहुत ज़्यादा इजी वर्डिंग में है। इंग्लिश की कोई सी भी हेल्पिंग बुक आप उठा लेना, तो उसमें बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए होते हैं और कोटेशंस की तो आप बात ही ना करें। बहुत ही कोई फ़िज़ूल किस्म की हाई-फ़ाई इंग्लिश मारी होती है। तो आप हर चीज़ छोड़कर ये वाला ऐसे याद करें। द इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। इट कनेक्ट्स द होल वर्ल्ड टुगेदर. We can share any information in seconds. It is the greatest invention of modern time. Now life is very difficult without internet. इसके बाद आपने एक कोटेशन लिखनी है। द वर्ल्ड इज एट आवर फिंगर टिप्स। नेक्स्ट पैराग्राफ है। इंटरनेट मीन्स कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटर्स। इट कैन बी थ्रू केबल और वाईफाई. इट हेल्प्स अस टू सेंड एंड रिसीव डेटा. इट इज यूज्ड बाय बिलियंस ऑफ पीपल. इट इज द मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपको लास्ट पे बताऊंगी, तो वीडियो आपने लास्ट तक जरूर देखनी है। नेक्स्ट हमने कोटेशन लिखनी है। कनेक्शन इज द की टू प्रोग्रेस। अच्छा, आपका ऐसे लिखने का जो स्टाइल है ना, वो ऐसे होना चाहिए कि एक पैराग्राफ हो और उसके बाद एक कोटेशन, फिर एक पैराग्राफ हो और फिर कोटेशन। नेक्स्ट पैराग्राफ है। द इंटरनेट हैज चेंज द वे वी टॉक. वी कैन चैट विद एनीवन इन द वर्ल्ड. Apps like WhatsApp and Snapchat are very popular. Video calls make us feel close to our family. Next quotation है. The internet brings hearts closer. Next paragraph है. Education has become very easy with internet. Students can learn from Google and YouTube. Online classes are common now. Every book or notes can be found online. It works like a free teacher for all. The internet has made education free for everyone. Business has grown a lot due to internet. People do online shopping and banking. Companies sell products online. Many people do online jobs and earn money. It has created many new jobs. The next is quotation. Internet is the new marketplace. Internet is the biggest source of entertainment. We can watch movies, songs and cartoons. We can also play games online. It helps to remove stress. We can listen songs. We do not need TV or DVD anymore. Entertainment is now online. Social media is a big part of internet. People share photos and news daily. We can make new friends. Students use it for study. Teachers can use it for teaching. Social media can connect the whole world. We get all news on internet within seconds. Newspapers and TV are less used now. We can read news of the whole world. Information is updated every minute. इसके बाद quotation है. News travels faster than light. नेक्स्ट चलते हैं. द इंटरनेट हैज़ मैनी एडवांटेजेस. इट सेव्स आवर टाइम एंड मनी. वी कैन डू वर्क फ्रॉम होम. इट गिव्स अस फास्टर इंफॉर्मेशन. इट मेक्स लाइफ कंफर्टेबल एंड easy. It has made the world a global village. Internet saves time and effort. The internet also has bad effects. People waste too much time online. Students get distracted from studies. Cybercrime and hacking are increasing. Too much internet is harmful. Fake news and information spreads very fast. It can harm our health too. Sitting all day on internet is bad for health. It causes eye problems and back pain. Children do not play outdoor games. Excess of everything is bad. Internet is also used for wrong things. Hackers steal personal data. People do online frauds and scams. Privacy is not safe anymore. Technology is a useful servant but a dangerous master. The internet has also affected our family life.
People sit together but use their own phones. Children talk less with parents. Family gatherings are now full of phones. We forget to spend real time with our loved ones. Family time is more important than screen time. Internet is like a tool. If we use it right, it helps us. If we misuse it, it harms us. We should give time to family and friends too. Real life is more important than virtual life. Use technology, don't let it use you. अब ये है इसका लास्ट पैराग्राफ. Internet is a great blessing. It has made the world a family. We cannot live without it today, but we should use it wisely with limits. अच्छा जी, यहाँ पर आकर हमारा ऐसे तो एंड हो गया, लेकिन अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की. तो अगर आप लोगों ने फुल मार्क्स लेने हैं ना 15/15, तो आपका ऐसे ऑलमोस्ट 8 पेजेस का ज़रूर होना चाहिए. आप लोगों का ऐसे लिखने का सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए कि एक कोटेशन के बाद एक पैराग्राफ और फिर एक कोटेशन के बाद फिर एक पैराग्राफ. अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सेकंड ईयर का ऐसे तो 20 मार्क्स का होता है, लेकिन अब ऐसे 2027 के लिए 15 मार्क्स का होगा. 2026 तक तो ऐसा ही होता था कि ग्रामर में सिर्फ ऐसे होता था सेकंड ईयर में, इसलिए वो 20 मार्क्स का होता था. लेकिन अब पैक्टा ने इसमें एक नई चीज ऐड कर दी है जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. फिर भी 8 पेजेस के ऐसे को याद करना मुश्किल है ना, तो इसलिए हमने ऐसे के हर पैराग्राफ की एक निशानी लगानी है, जिससे हमें याद रहेगा कि अगला हमने कौन सा पैराग्राफ लिखना है. इस निशानी को हम नाम दे देते हैं हेडिंग का, लेकिन आपने ये हेडिंग सिर्फ अपने लिए पेंसिल से लिखनी है. तो फर्स्ट पैराग्राफ की हेडिंग है इंट्रोडक्शन, और आप लोगों ने इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो कोटेशन आपने लिखनी है ना, वो उस पैराग्राफ के रेलिवेंट होनी चाहिए. नेक्स्ट पैराग्राफ की आप हेडिंग बना लें डेफिनेशन. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, फिर है एजुकेशन, बिजनेस, इंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हेल्थ प्रॉब्लम्स, साइबर क्राइम्स, फैमिली लाइफ, टूल, एंड लास्ट पे है इसका कंक्लूजन, यानी हासिल कलाम. बस ये हेडिंग्स के साथ आप लोग याद कर लें, लेकिन याद रखें कि हेडिंग्स आपने पेपर में नहीं लिखनी. ये सिर्फ आपके याद करने के लिए है कि कोई पैराग्राफ आपसे मिस ना हो. Thanks for watching this video. Please like and subscribe.